हेलो गाइस और बच्चों, हाउ आर यू? जॉब इज डन वेरी वेल और नॉट? कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? कैसा प्रिपरेशन है? आर यू फिट? आर यू फाइन? आर यू बेस्ट? इन द लास्ट लेक्चर we have discussed about the physical quantities and focused on the measurement system, and to measure the physical quantities like fundamental or derived, and two supplementary quantities are left. Their units will be discussed: plane angle and solid angle. I will discuss them, so don't worry about that. Fundamental quantities, total 7 in number. Derived quantities are listed, sum of the whole numbers, and they were expressed how they depend on fundamental quantities. What are the arrangement for the proper derived quantities? That has already been discussed. So the process will be continue when we start dimension. Then the derived quantities will explain more and more. Because to write the dimensional and formula for derived quantities, we need to express all of them in the form of fundamental quantities. So measurement system, we have already taken into account MKS system, CGS system, FPS system. All of the system of measurement were broadened in the last lecture: meter, kilogram, second system; centimeter, gram, second system; foot, pound, second system. But there was the common fact in all these three. Only they can measure three of the fundamental quantities: length, mass and time. Length, mass and time. In the field of more and more invention in science, the further like 1971 about the session, the group of fundamental quantities became enlarged as per the requirement of team of scientists or mathematician. We can say they are the combination. So in total we have 7 fundamental quantities, and to measure all of them, a new and latest, we can say, system of measurement came into picture, named as International Standard System of Measurement, called SI system, according to which length, mass, time, temperature, electric current, amount of substance and luminous intensity, they were given the proper fundamental SI units: length, length, meter; mass, kg; time, seconds; temperature, Kelvin; electric current, ampere; amount of substance, mole; and luminous intensity in the form of candela. The supplementary quantities were given their units: plane angle, radian; and solid angle, ST radian. And for derived quantities, need not to explain their SI units, because whenever we will start
more discussion on derived quantities, then automatically fundamental form of those will declare their SI units or CGS units or FPS units, whatever. आज हम आपके लिए कुछ क्रूशियल और अनकॉमन यूनिट्स आपके लिए लाए हुए हैं जो जनरली यूज बहुत कम होते हैं, लेकिन मेरी इच्छा हुई कि मैं आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज दूं और इसके लिए हमने एक अलग से कुछ कलेक्शंस लिए हैं आपके लिए और हम चाहेंगे कि यू शुड नोट डाउन some basic units of measurement. Although I will start today, dimensional analysis is the main lecture, but it will take some time. So please, some basic units of measurement for length, large length के लिए अगर हम बातें करें, जैसे देखिए लाइट ईयर, ये सब ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछे जाते हैं। लाइट ईयर देखने से लगता है कि ये टाइम का यूनिट हो सकता है, बट इट इज द यूनिट ऑफ लार्ज डिस्टेंस एंड इन एस्ट्रोफिजिक्स और वी कैन से में इन सब चीजों का यूज होता है। वन लाइट ईयर जो है वो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के इक्वल होता है। आप चाहें तो इसको मीटर में भी कन्वर्ट कर लें 10⁻3 और इसमें इंक्रीज कर जाएंगे, डजंट मैटर। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये जो है इट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ। सन एंड द अर्थ के एवरेज डिस्टेंस को एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के फॉर्म में माना गया है। सो it is the average distance between the sun and the earth, and one astronomical unit is responsible for 1.5 into 10 to the power 11 meter. 1.5 into 10 to the power 11 meter. This is astronomical unit. Thereafter we have parallactic second, or we can say in short parsec. Parsec or parallactic second, it is the largest unit of length or distance we can say, and 1 parsec equal to 3.08 into 10 to the power 16 meter. 3.08 into 10 to the power 16 meter. So please note, अब देखिए इसके ऑर्डर है। 3 larger unit of distance are coming into the picture: light year, astronomical unit, and thereafter we have parallactic second. ये लार्जेस्ट है, 1 parsec is greater than that of 1 light year, greater than that of 1 astronomical unit, because their magnitudes are also here and here। और ये जो इनके मैग्नीट्यूड्स हैं, तो आप इनके मैग्नीट्यूड्स के अकॉर्डिंग यू कैन सी द ऑर्डर ऑफ देयर large order of their largeness. So 1 parsec is largest, 1 light year after that, and 1 astronomical year after that. So please note, I think you have been noted. Now we proceed for a smaller unit of distance. How smallest they can. For a smaller लेंथ, ये लार्जेस्ट लेंथ की बात करी थी हम लोगों ने, और आई थिंक कि यहाँ स्मॉलर लेंथ भी आया था। 1 फर्मी आया था 10⁻⁻15 मीटर के,
1 एंगस्ट्रम आया था, आपको उस बोर्ड पर लिखा हुआ था, फिर भी मैं इसको चूंकि हमने इरेज कर दिया है, सो लेट अस फॉर ए स्मॉलर लेंथ आप देख सकते हैं यहाँ आपके बोर्ड पर वहां है, आप उसको, लेकिन मैं कर देता हूं। 1 फर्मी इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर, इनके यूज होंगे, सो इनको आपको ध्यान में रखने की जरूरत होगी। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻10 मीटर। C 1 माइक्रोन 10⁻6 मीटर। D 1 नैनोमीटर 10⁻9 मीटर। E 1 पिकोमीटर 10⁻12 meter. So this can be taken to be the smallest unit of length. न्यूक्लियर डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। दिस इज वेरी वेरी स्मॉल, 10⁻15 वी कैन इमेजिन। सो these are the smallest, या हाँ, सो लेंथ के स्मॉलेस्ट यूनिट के रूप में हम लोग इनको यूज करेंगे, और जब कभी भी जरूरत आएगी तो हम इस पर बातें करते रहेंगे, इस पर ध्यान देते रहेंगे, इसको कंसीडरेशन में लाएंगे। एंड आइए अब इसके बाद बात करते हैं कुछ वेरिएशंस की। सम वेरिएशंस, ये सब सम वेरिएशंस 1 इंच जो होते हैं वो 2.54 सेंटीमीटर के इक्वल होते हैं। 12 इंचेज 1 फुट डिजाइन करते हैं। 3 फीट 1 यार्ड डिजाइन करते हैं, यार्ड बोलते हैं गज को। उसके बाद 1760 यार्ड्स 1760 यार्ड्स 1 माइल बनाते हैं। एंड 1 माइल जो होते हैं वो 1.6 किलोमीटर के इक्वल होते हैं। सो ये जो वेरिएशन है वो थोड़ा सा मतलब है, आप इसको ध्यान में रखने की जरूरत है आपको। बिल्कुल देखिए ना आप, 1 इंच जो है वो 2.54 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। 12 इंचेस को 1 फुट कहते हैं। फुट का ही प्लूरल यहाँ पे फीट है। 3 फीट 1 यार्ड होता है। 1760 यार्ड्स को 1 माइल कहते हैं। एंड 1 माइल 1.6 किलोमीटर के इक्वल होता है। ये भी एक सेपरेट वेरिएशन था जो मेरे मन में था कि बात मैंने रखी आपके सामने। सो यू प्लीज नोट डाउन। और अब कुछ मैं आपको मास के लिए, कुछ टाइम के लिए थोड़ा बहुत दे देता हूँ, और वो आपको मेमोरी में रखने की जरूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा उसमें परेशान होने वाली बात कुछ नहीं है, ये एकदम रखे रहिए। कभी अगर जरूरत लगे तो आप यूज कीजिए। आइए इसको मैं मिटाता हूँ। लेट मी इरेज इट। सम यूनिट्स रिलेटेड विथ मासेस। Some units related with masses, लार्जर में भी जाते हैं और जरूरत पड़ेगी तो स्मॉलर में भी जाएंगे। सो प्लीज सी for heavy masses, for heavy masses, for heavy masses, अगर heavy masses की बात की जाए तो
तो इसमें 1 टन, टन का नाम सुना होगा आपने, 1 टन, और इसी को मैट्रिक टन भी कहा जाता है, 1 मैट्रिक टन। ये सब अभी चलते तो हैं ही, लेकिन हम लोगों को जल्दी सुनने को नहीं मिलता होगा। ये जो होता है ये 10⁻³ kg के इक्वल होता है। 1000 kg को 1 टन का नाम हम लोग देते हैं। एंड उसके बाद 1 स्लग SLUG 14.57 kg, 1 स्लग। अब ये सब चीज बहुत कम चलते हैं, इसीलिए रेयर होने के चलते आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज प्रोवाइड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हम आपके लिए कलेक्ट करके दे रहे हैं आपको। 1 स्लग इक्वल टू 14.57। एंड थर्ड नंबर में एक बात है, द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मास, द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मास, ये होता है आपको 1 CSL, चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं इसको, चंद्रशेखर लिमिट। तो ये वैल्यू होता है आपको 1.4 टाइम्स द मास ऑफ सन, 1.4 टाइम्स द मास ऑफ सन। सन के मास के 1.4 टाइम्स, यानी 1.4 गुना कह दीजिए उसको। 1.4 टाइम्स का मतलब 1.4 गुना सन के मास के उतने टाइम्स जो होते हैं वो उसको 1 CSL यानी 1 चंद्रशेखर लिमिट के नाम से बनाता है। इट इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मास वी कैन से। सो एकदम आराम से, कोई घबराने वाली बात नहीं है। दिस इज द मैटर ऑफ पेशेंस, दिस इज द मैटर ऑफ योर स्टेबिलिटी, योर कंसिस्टेंसी। आपके धैर्य ही आपको सक्सेशन दिलाते हैं। यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर योर सक्सेशन इफ यू हैव द पेशेंस इन योर लाइफ एंड इन योर एकेडमिक करियर। इट इज मस्ट टू नो दैट how to proceed, how to study, how to learn, what to do, what not to do. So ये सब चीजें हर हमेशा आपसे हमारा एकदम माइल्ड रिक्वेस्ट है कि यू टेक केयर अबाउट योरसेल्फ। अब आइए इसी में हम आपको वेरी स्मॉलर यूनिट्स के विषय में बात करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट वेरी स्मॉल यूनिट्स। ये सब इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट किया है तो आपके लिए मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, क्योंकि आप इसमें जब दिमाग लगाओगे तो काफ़ी परेशानियाँ बढ़ जाएगी। बुक्स वगैरह में काफ़ी चीज़ें होती है जो आपको उलझा देने वाली होती है। सो डोंट गो फॉर द वॉल्यूशन ऑफ एनी बुक्स एंड ट्राई टू फोकस द शॉर्ट लिस्टेड मटेरियल एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इट इज मस्ट टू नो। जब मैंने पहले ही लेक्चर में कहा था या दूसरे लेक्चर में मैंने शेयर किया था कि जब तक मैं आपको नो एडवाइस करूं क्या पढ़ना है, कौन से बुक को कितने पेज में पढ़ना नहीं पढ़ना, सब आई विल गिव यू द डिटेल, बट यू वेट, यू शुड वेट फॉर दैट। एंड अभी आपको कुछ भी नहीं परेशान होने की बात है ना, बिल्कुल इजीली व्हाट एवर यू आर सप्लाइड इन योर लेक्चर, you be careful and you be serious about that, one and only one, not more than this much. So please very small units में आइए। ये सब चीजें एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, इसी को शॉर्ट में हम लोग AMU बोलते हैं, AMU। एंड 1 AMU जो होता है इक्वल टू होता है 1/12 ऑफ द मास ऑफ
C612 atom, mass of one atom of C6, कार्बन 6 और 12, ये इसका मास नंबर, ये इसका एटॉमिक नंबर। इसके एक एटम के मास के 1/12 पार्ट को ही 1 एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है। एंड वी राइट देन 1 AMU इक्वल टू 1.67 into 10 to the power -27 kg. This is the value of 1 AMU, so you should remember this. You please note down. स्टूडेंट्स की मस्ती अभी होनी चाहिए, उनको जो है कोई तरह का टेंशन नहीं मिलना चाहिए। एंड अगर वो अभी टेंशन में आ जाएंगे तो उनका मामला खराब हो सकता है। बी में 1 पाउंड, ये भी आप यहाँ तो 0.453 kg, एक पाउंड जो होता है वो 0.453 kg के इक्वल होता है। सो ये तो उतना स्मॉल नहीं है, इसको तो इधर ही लिखते ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए अब इधर आ गया तो स्लग के बगल में लगा देते कहीं पर इसको, तो वो होता। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, आपको ये लगेगा कि इस साइड में ये क्यों आ गया, तो मैं यहाँ इसको कर देता हूँ, अपने पास में स्पेस है। 1 पाउंड दिस इक्वल टू 0.453 kg। FPS सिस्टम में जो आपने फुट पाउंड सेकंड सिस्टम देखा होगा, मैं उसी पाउंड की बात कर रहा हूँ। याद रखिएगा ये POUND है, पाउंड है, ये POND पाउंड नहीं है। They have the different meaning and they have the different sense. They are quite different. So right now हैप्पी मास के लिए टर्म देखा आपने, स्लग देखा आपने, CSL भी देखा आपने, पाउंड भी देखा। और अब जो है एक कैरेट होता है, 1 कैरेट जो 200 मिलीग्राम के इक्वल होता है। ये भी आपको मैं दे दूं, 1 कैरेट CARAT इक्वल टू 200 milligram. 1 carat is also a smaller unit of mass. ये सब आपको मैं ऐसे दे रहा हूं, आप इसको रखना। सो यहां मैं इसको इरेज कर दूं, लेट मी इरेज इट। आपको अब थोड़ा थोड़ा एकदम स्लो एंड स्टडी, स्लाइटली, एकदम बिल्कुल छोटे छोटे पैकेज करके आपको सिलेबस दे रहे हैं। और जब कभी भी टाइम मिले, जब कभी भी मूड करे, तब उसको देखना है और अच्छे से देखना है। चीज़ें एकदम बिल्कुल आपके यहाँ दिल में, दिमाग में, दोनों जगह पे सेट होना चाहिए, तब जाकर के सब्जेक्ट का इंटरटेन हो पाएगा अच्छे तरीके से। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, लेट मी इरेज इट। आप लोग बहुत समझदार, यू आर ब्रेवो, यू आर क्लेवर, यू आर स्मार्ट एंड यू आर डेंजरस ऑल्सो। आइए थोड़ी बात कर लेते हैं टाइम, फॉर टाइम। जब सब कुछ हो गया, लेंथ हो गया, मास हो गया, तो टाइम की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। टाइम के लिए आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले एक सोलर डे की बात कीजिए। सोलर डे जो होता है, ये टाइम है, इट इज द टाइम टेकन बाय द अर्थ in one rotation about its own axis
अबाउट इट्स ऑन मतलब होता अपना खुद के एक्सिस। आपको पता है कि अर्थ के पास डबल वेलोसिटी है, ये खुद के एक्सिस के अबाउट भी रोटेट करता है और ये सन के अबाउट भी रिवॉल्यूशन का या रोटेशन करता है। तो दोनों तरह के आपको मैं अभी एक राउंड डायग्राम मतलब एक बड़ा ही सरप्राइजिंग इंफॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ आपको, फिर मजा आएगा वो देख करके। पहले आप देखिए, टाइम टेकन बाय द अर्थ इन वन रोटेशन अबाउट इट्स ऑन एक्सिस while rotating around the sun, rotating around the sun। मतलब ये कहने का मीनिंग हमारा ये है, we want to convey that जो हमारा ये डे नाइट अभी हम लोग देख रहे, कभी रात थोड़ी छोटी होती है, कभी डे थोड़ा ज़्यादा टाइम का होता है, तो ओवरऑल 24 आवर्स जो हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं, दिस इज इन जनरल वी से सोलर डे, इसको लोग ऐसा बोलते हैं। आइए बी नंबर में ये सब इंफॉर्मेशन है जो हमारे पास रहना चाहिए तो अच्छा लगता है। सोलर ईयर, सोलर ईयर, ये देखिए ये तो वो टाइम है, it is the time taken by the earth in one rotation around the sun। ये सब कॉमन चीज है जो हम जानते हैं, उसी को थोड़ा समराइज कर देना मैंने आपको करके भी दिया है, जो आप जानते हैं उसी को थोड़ा सिस्टम में मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। सोलर ईयर, इट इज द टाइम टेकन बाय द अर्थ इन वन रोटेशन अराउंड द सन। सन के अराउंड जो अर्थ रोटेशन लेती है, इसी को है ना, एक ईयर तो आप लोग हम लोगों को पता ही है कि हियर इज द सन, एंड इस पर तो काफी डिटेल में हम लोग बात करेंगे, लेकिन दिस इज अर्थ, वी हैव अर्थ, ये अर्थ है और इसी को सन के अराउंड, ऐसे तो और भी सारे हैं आपको पता ही होगा, प्लैनेट्स और भी है, लेकिन ये एक राउंड लेने में इतना टाइम लगता है, वही सोलर ईयर कहलाता है। चलिए ये तो हमारे अर्थ की बात हो गई। उसके बाद ट्रॉपिकल ईयर, हाँ ये थोड़ा सा अच्छा है, ट्रॉपिकल ईयर थोड़ा सा देख लीजिए। ट्रॉपिकल ईयर, ट्रॉपिकल ईयर, ट्रॉपिकल ईयर थोड़ा सा समझना ये इंटरेस्टिंग है। कहता है ये उस ईयर को कहा जाता है, ट्रॉपिकल ईयर उस ईयर को कहा जाता है जिस ईयर में सोलर इक्लिप्स कंप्लीट होता है, मतलब टोटल सोलर इक्लिप्स जिस ईयर में होता है उस ईयर को क्या कहा जाता है, ट्रॉपिकल ईयर कहा जाता है। The year is called as tropical year in which total or we can say complete जो सोलर इक्लिप्स है वो जनरेट होता है। और दिस इज वेरी क्रूशियल वन, क्योंकि ये तो आप जानते हो कि सोलर इक्लिप्स हो या लूनर इक्लिप्स हो, ये सभी काफ़ी रेयर हुआ करते हैं, वो भी कंप्लीट वाला तो बहुत कम ही देखने को मिलता है। तो ये सोलर ईयर हर कॉन्टिनेंट में, हर जोन में अलग अलग हो सकते हैं, बिकॉज जिस ईयर में हम कंप्लीट देखते हैं या ओवरऑल इसको आप कहते हैं कि जब कंप्लीट होता है वो ये क्या बोलते हैं, सोलर इक्लिप्स, तो सोलर ट्रॉपिकल ईयर है। सो प्लीज नोट, इट इज द, इसको थोड़ा सा लिख भी देते हैं, ईयर ऑफ कंप्लीट और वी कैन से फुल सोलर इक्लिप्स। इट इज द
ईयर ऑफ फुल सोलर इक्लिप्स। तो कैलेंडर के हिसाब से आपको आगे अगर कभी ऐसा चांस मिलेगा तो थोड़ी सी बात हम शेयर करेंगे कि जो टाइम रिकॉर्डिंग है, जो टाइम है या डेट लाइन है या डे है, ये सभी जो है वो चेंज करते हैं कंटिनेंट में। अब ऐसा नहीं, उसका एक यूनिवर्सल डेट लाइन है और उस डेट लाइन के लिए इधर जाइए या डेट लाइन के उधर जाइए, दूसरे साइड में जाने पर हर चीज़ें चेंज करती है। और ट्रॉपिकल ईयर जो है वो यूनिवर्सली भी कह सकते हैं या हमारे कैलेंडर के मुताबिक हमारा होगा, दूसरे कैलेंडर के मुताबिक दूसरा हो सकता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सो ट्रॉपिकल ईयर इज द ओवरऑल जो मेन डेफिनेशन है कि इट इज द ईयर ऑफ फुल सोलर इक्लिप्स। तो आई थिंक कि हमारे कॉन्टिनेंट में जो कंप्लीट सोलर इक्लिप्स क्रिएट हुआ था, हम उस ईयर को अपने हिसाब से ट्रॉपिकल ईयर बोलेंगे। अगर दूसरे में नहीं हुआ, दूसरा उसको नहीं बोल सकता। आइए मैं इसको इरेज करूं क्या? ये सब इंफॉर्मेशन काफी रेयर है, आप इसको रखो, याद रखने की कोशिश करो, रहता है तो भी ठीक है, नहीं तो ये सब उतना ज़्यादा क्वेश्चन अराइजिंग नहीं है, फिर भी मेरे मन में आई थी मैं थोड़ा सा आपके लिए। हाँ, ये सब तो जानते हैं आप। लीप ईयर, लीप ईयर तो आप सभी जानते हो। हम उस ईयर को लीप ईयर कहते हैं जिस ईयर की फरवरी 29 डेज की होती है। द ईयर in which Feb is of 29 days। जिस ईयर में फरवरी 29 डेज की हो जाती है उसको हम लोग लीप ईयर कहते हैं। एंड अब ल्यूनर इक्लिप्स की भी एक बात आ सकती है जिसको हम लोग ल्यूनर मंथ के नाम से जानते हैं। ल्यूनर मंथ हो गया लिखा हुआ। ल्यूनर मंथ, चीजें तो एक से एक आती है। हाँ, ये वो टाइम होता है, ल्यूनर मंथ वो टाइम होता है, उतने डेज होते हैं जितने डे में मून अर्थ को 1 राउंड कंप्लीट कर लेता है। क्योंकि हम लोग तो ये बात जानते हैं कि सन के अराउंड अर्थ रोटेट करती है और अर्थ के अराउंड मून जो है वो रोटेट करता है, रिवॉल्यूशन लेता है। तो वही है कि इट इज द टाइम, इट इज द टाइम taken by the moon, taken by the moon to complete one revolution around the earth, अर्थ के अराउंड 1 रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में। सो 1 ल्यूनर मंथ जो होता है, ल्यूनर मंथ, ये आपको 27.3 डेज के इक्वल होता है। 1 ल्यूनर मंथ इज इक्वल टू 27.3 डेज। सो बच्चों, ये चूंकि हमारा एक्स्ट्रा कलेक्शन था इसलिए हमने आपको बेसिकली ये चीज़ जो है सो सपोर्ट के रूप में दिया। और अब यहाँ से जो हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट का एक सेगमेंट है वो फिनिश होता है। एंड
जो चीज अब हम आपके लिए यहां से स्टार्ट देने वाले हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ दिस चैप्टर, and in all the examinations you are asked at least one question, and the name of second part of this chapter is dimensional analysis. The dimensional analysis is a new concept, and I will give you the better and we can say best approach to learn the dimensional analysis. और मैं आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे में, काफी इंटरटेनिंग मोड में आपको रखते हुए आई विल गिव यू द बेस्ट आइडिया अबाउट डायमेंशनल एनालिसिस। तो एक बार आप मुस्कुरा दीजिए, खुश हो जाइए, हंसिए और एक जॉली मूड में अपने आप को रखते हुए लेट अस स्टार्ट नाउ डायमेंशनल एनालिसिस एंड वी गो फॉर द न्यू कॉन्सेप्ट डायमेंशनल एनालिसिस। यू प्लीज नोट डाउन, और मैं समझता हूं कि आपने इसे नोट कर लिया होगा। सो प्यारे दोस्तों, जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना, हंसना ही तो है जिंदगी। आइए डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस, वेरी गुड। अब मैंने आपको कभी बोला था, ये बात कही थी कि चैप्टर कब शुरू होगा, कैसा होगा, क्या होगा उसका नाम, ये आपको पता भी नहीं चलेगा, एंड हम लोग उसको काफी अच्छे तरीके से प्रोग्रेसिव मोड में ले आएंगे और ले भी आए। सबसे पहले हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस फिजिकल क्वांटिटी में ही पूरा फिजिक्स समाया हुआ है, और यही फिजिकल क्वांटिटी ही हमारे फिजिक्स का बेसिक गाइडलाइन है। ये बात अब हम लोग जान चुके हैं। एंड इफ वी नो कि फिजिकल क्वांटिटी है, तो दैट इज द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वांटिटी। उनकी पहचान या उनका इंट्रोडक्शन का सबसे पहला मोड होता है कि दे कैन बी मेजर्ड। फिजिकल क्वांटिटी मेजरेबल होना चाहिए, और बाकी चीजें तो आपको पता है, अब उस पर बैक होकर के जाने से कोई फायदा नहीं है। हम ये कहते हैं कि हम कुछ बातें लिख रहे हैं पहले, और लिखने के साथ साथ आपको थोड़े समझने का भी मौका मिलेगा, और आपको एकदम पेशेंस रखना है। अगले जब तक मैं आपको ना बताऊं, हो सकता है कि आपको समझने में दिक्कत हो, घबराना नहीं है एकदम, वो बिल्कुल 100 नहीं बल्कि 200% क्लियर होगा, तो डोंट वरी फॉर दैट। पहले तो मैं आपको ये कहता हूं कि डायमेंशनल एनालिसिस को मैं अब डायमेंशनल फार्मूला वर्ड देता हूं, या डायमेंशंस ही सीधे मैं बोल रहा हूं, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज के जो डायमेंशन होते हैं, क्वांटिटीज ऑलवेज गिव्स द rough idea about those group of fundamental quantities that have formed the given physical quantity
फिजिकल क्वांटिटी। एक बात यहाँ अंडरस्टूड है जो बताने की जरूरत नहीं, नीड नॉट टू एक्सप्लेन, बिकॉज वी आर रिटन हियर कि डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ऑलवेज गिव्स द रफ आइडिया अबाउट दोज ग्रुप ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। उन फंडामेंटल क्वांटिटीज के ग्रुप के लिए हमें एक रफ आइडिया देता है। मेजरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं, मैं अभी आपको मैं अच्छे से समझाता हूं, आप इसको पहले लाइन को देखो। दैट हैव फॉर्म्ड द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। अब यहाँ पे अंडरस्टूड मैटर क्या है कि ग्रुप ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी से कौन बनते हैं, तो डिराइव्ड क्वांटिटी बनते हैं। क्योंकि फंडामेंटल तो फंडामेंटल, वो तो अपने आप में बेताज बादशाह है, उसको किसी की जरूरत है नहीं। लेकिन उनके जब ग्रुपिंग किए जाते हैं मैथमेटिकली एज पर द लॉ ऑफ फिजिक्स, जब वो अरेंज होते हैं तो जो न्यू फिजिकल क्वांटिटी बनकर के सामने आता है, दे आर डिराइव्ड क्वांटिटी। सो ये अंडरस्टूड मैटर है कि डायमेंशनल फार्मूला यानी डायमेंशनल एनालिसिस जो हम लोग करने वाले हैं वो डिराइव्ड क्वांटिटी के ही करते हैं। अब यहाँ एक बात समझने वाली है, ये रफ आइडिया वर्ड से हम क्या मीनिंग निकालते हैं। क्या वो ये बताता है कि अगर स्पीड को बढ़ाना है तो लेंथ को लाल करना होगा और टाइम को ब्लू करना होगा या रेड करना होगा? क्या आइडिया देता है कि लेंथ और टाइम में मोहब्बत करवाना होगा, उसमें इश्क दिखाना होगा? क्या ये आइडिया देता है? क्या ये आइडिया देता है कि दोनों में लड़ाई करवा देनी होगी? क्या ये आइडिया देता है कि दोनों को तोड़ के बर्बाद कर देना होगा? नो, ये बताएगा क्योंकि ये टॉपिक है मेजरमेंट का, तो डायमेंशन कभी एग्जैक्ट मेजरमेंट ये नहीं बताएगा कभी हमको कि लेंथ 5 मीटर लोगे और टाइम 10 सेकंड लोगे तभी स्पीड बनेगा, ऐसा ये कभी नहीं कह सकता। और आप तो खुद भी इसको रियलाइज कर सकते हो, whatever be the magnitude of length, whatever be the magnitude of time doesn't mean। इसीलिए मैंने रफ आइडिया दिया है। रफ आइडिया वर्ड जो लिखा गया है उसके पीछे का यही राज है कि किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी को डिजाइन करने में किन किन फंडामेंटल क्वांटिटीज को कितनी बार और किस तरह, व्हाट आर द मैथमेटिकल रिलेशंस, मल्टीपल के फॉर्म में है, स्क्वायर के फॉर्म में है, डिवीजन के फॉर्म में है, कैसे है, इस तरह से उसको अरेंज करके डिराइव्ड क्वांटिटी बने, ये आइडिया देता है। लेंथ कैसे और कितनी बार यूज हुआ, टाइम कैसे कितनी बार यूज हुआ, और बाकी फंडामेंटल और क्वांटिटी जो भी हैं वो कैसे और कितनी बार यूज किए गए हैं, इसके विषय में रफ आइडिया हमें डायमेंशनल एनालिसिस ही देता है और डिराइव्ड क्वांटिटी। इसीलिए मैंने रफ आइडिया देता है, एक सामान्य जानकारी। मैं बहुत ही बेहतरीन एक एग्जाम्पल लाऊंगा आपके लिए, आपको बहुत मजा आएगा। क्योंकि एक बात तो अब डिक्लेयर हो चुकी है कि रफ आइडिया जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज के अरेंजमेंट की तरफ इशारा कर रहा है, और डायमेंशन भी एक तरह का मेजरमेंट है। ये फिजिकल क्वांटिटीज के मतलब शेप साइज को, शेप साइज इन द सेंस की लेंथ कितनी बार कैसे, जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज कीजिए कि आप किसी टाउन में आपके पापा ने एक प्लॉट परचेज किया, और जब प्लॉट परचेज किया उन्होंने, तो वो अपने फ्रेंड के पास गए, उस प्लॉट में अब उनको एक बिल्डिंग अच्छी सी बनानी है, तो फ्रेंड के पास गए और बोले कि देखो दोस्त, मैंने एक प्लॉट लिया हुआ है और उस प्लॉट में हमें एक बिल्डिंग डिजाइन करना है। सो यू आर आर्किटेक्चर, संजोग से वो आर्किटेक्चर थे, बिल्डिंग के मैप वगैरह डिजाइन करते थे। तो बोले कि यार तू एक बात बताओ, तेरे प्लॉट का डायमेंशन क्या है? अभी तो रिकॉर्ड लिखने का, ऐसे मॉर्निंग वॉक में निकला था तो मैं आ गया आपके पास। सो यू जस्ट गिव मी द आइडिया व्हाट टाइप ऑफ बिल्डिंग कैन बी स्ट्रक्चर देयर। सो कहा कि आप पहले ये बताओ कि आपने तो कुछ पेपर लाए नहीं अपने का, जो वो डायमेंशन मतलब वो क्या बोलते हैं आपके प्लॉट का, थोड़ा सा आप डायमेंशन मेरे को बताओ ना।
तब ना मेरे दिमाग में एक माइंड सेट होगा कि तुम्हारे प्लॉट का डायमेंशन। अब डायमेंशन वर्ड यहाँ पे मैटर क्या है, ये एग्जांपल मैंने सपोर्ट किया अपनी डायमेंशन वर्ड को जानने के लिए। अब प्लॉट के डायमेंशन पूछे हैं आपके पापा के फ्रेंड ने आपके पापा को, सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स व्हाट इज द लेंथ, व्हाट इज द विड्थ, how is the shape of plot, it is triangular or rectangular or square shape. सो डायमेंशन का मतलब एक ही बार में उन्होंने सब कुछ पूछ लिया कि क्या लेंथ है, क्या उसका विड्थ है, कैसा शेप है। तो ओवरऑल ये एक रफ आइडिया उन्होंने लिया। उसी तरह से फिजिकल क्वांटिटीज के भी केस में जब कभी भी ड्राफ्ट क्वांटिटी को हम लोग सामने लाते हैं तो उनका डायमेंशनल जो एनालिसिस करते हैं, जो उसका डायमेंशनल फार्मूला होता है, वो टोटली बता देता है किन किन फंडामेंटल क्वांटिटीज को इसमें किस तरह यूज किया गया, कितनी बार यूज किया गया। और इस पर और ज्यादा खिंचाई करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक कि इसको जैसे मैं और एग्जांपल इसको मैं अब बढ़ाऊंगा तो आपको पूरी तरह से पिक्चर क्लियर हो जाएगा। सो उसके लिए मतलब किसी भी तरह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको ये बात मैंने लिख दिया। अब देखिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके लिए रिप्रेजेंट करता हूं। सपोज कीजिए यहां देखिए मैं लिखता हूं टी। टी का मतलब क्या होता है, एक एग्जांपल मैं आपके लिए रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इंटरटेन कीजिए इस एग्जांपल के साथ एंड यू विल एंजॉय द डायमेंशनल एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल। एकदम बिल्कुल आपको मजा आएगा, खूब अच्छा लगेगा। लेट मी सपोज कीजिए कि यहाँ पर मैंने टी लगाया। टी का मतलब क्या, चाय बनानी है मेरे को। तो आपको पता है कि इसके लिए दो तीन कंपोनेंट ऐसे होते हैं, दोज आर मोस्ट इंपोर्टेंट। सबसे पहले मिल्क चाहिए होगा आपको, ध्यान दीजिए, सब एकदम अच्छा लगेगा आपको। मिल्क इज द वन कंपोनेंट। उसके बाद शुगर, ज्यादा मैं नहीं जाऊंगा, ये शुगर है। अब कह रहे हैं सर शुगर फ्री चाहिए, नहीं, यहाँ पर शुगर फ्री वाले की कोई व्यवस्था नहीं है। शुगर वाला मतलब आपको डायबिटीज नहीं है। एंड उसके बाद हम लीफ, चाय पत्ती इसको बोलते हैं, है ना। ये तीन कंपोनेंट हम इसमें यूज करते हैं। और तथा चलिए वाटर रहेगा तो भी चलेगा, नहीं रहेगा तो भी चलेगा। डायरेक्ट मिल्क के भी हम लोग कर देते हैं। अब आपको मैं ये बताने वाला हूं कैसे। देखिए एक टी को मैं लाइक डेराइव्ड क्वांटिटी बोल रहा हूं, एकदम आपको बहुत मजा आएगा। यू विल गेट द मोस्ट इंटरटेनमेंट। डेराइव्ड क्वांटिटी की तरह मैं इसको देख रहा हूं। एंड बिहेवियर लाइक दिस। मिल्क को हम शुगर नहीं बोल सकते, शुगर को मिल्क नहीं बोल सकते, लीफ को हम शुगर नहीं बोल सकते, शुगर को लीफ नहीं बोल सकते। सो मैं क्या कहता हूं, ये तीनों जो है ना, इनको मैं कहता हूं कि यार मेरे तू तीनों जो है लाइक फंडामेंटल क्वांटिटी बन जा। क्या बन जा, लाइक फंडामेंटल। हाँ, अब आपको देखिए सब कुछ में यहां से क्लियर हो जाएगी बात। अब आप हमें बताइए, जब मिल्क, शुगर और लीफ, इन तीनों को एक साथ मिला करके और तब इनको, इनसे हम जो चीजें बनाते हैं वही सामने चाय बन करके आती है। अब बात क्लियर है। इन तीनों के क्वांटिटी में वेरिएशंस करने से, अब आप बोलोगे सर यहाँ लेंथ का तो 10 मीटर के बदले 15 मीटर, वो अलग बात है। यहाँ पर मैं आपको एक सेंस दे रहा हूं कि सिर्फ इन्हीं तीनों के क्वांटिटी में वेरिएशंस करने से टी के टेस्ट में डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा, हमको ये आप बता दीजिए। और मैं समझता हूं कि इट इज क्लियर नाउ कि इसी तीन फंडामेंटल क्वांटिटी के अलग अलग तरह से यूज करके हम नए नए डिराइव्ड क्वांटिटी बना सकते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी वही रहेंगे, उनके एप्लीकेशन का मोड हम चेंज करते जाएंगे, उनके टाइम्स को चेंज करते जाएंगे, उनको रिपीटेशन को चेंज करते जाएंगे, उनके रिलेशन के तरीके चेंज करेंगे। हम अपने से नहीं, फिजिक्स के रूल के अकॉर्डिंग करेंगे। नई नई डिराइव्ड क्वांटिटी बनती चली जाएगी और डायमेंशनल एनालिसिस में वो सब कुछ आपको दिखेगा।
और मैं मानता हूं कि आप इतना पहले कॉपी कर लीजिए और आज यहीं पर आपका मैं लास्ट कर रहा हूं। डोंट बिकम टेंशनाइज, एकदम फ्री माइंड से रहो, कुछ भी नहीं अभी, एकदम आपको जितना मैं एकदम ऑन द वे में आपको बता रहा हूं कि थोड़ी थोड़ी जानकारी मैं दे रहा हूं। नंबर ऑफ लेक्चर्स बढ़ेंगे और कुछ नहीं, बट ये सबसे ज्यादा जरूरी है। इट इज मोर इम्पोर्टेंट टू टेक केयर अबाउट योर सेल्फ, बिकॉज आपका जो कोटा है वो अभी उतना स्ट्रॉन्गर नहीं है। सो आप आज इतना से ही संतुष्ट रहिए एंड हमारा जो ब्लेसिंग्स है वो आपके साथ है। थैंक यू।